डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। और उसके बाद हमने कहा था कि गुड एंड बैड कंपनी जो है वो ईमान को इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है रिस्पेक्टिवली। One second, be little louder. You're not very clear. We said कि गुड एंड बैड कंपनी ऑफ पीपल वो ईमान को इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है, राइट? Good and bad company, actually we were talking about the people who will be tasting the sweetness of iman is having a loving and a supporting attitude towards the good believers and disassociating from the disbelievers, yani. So that's Yes. what it is, yeah, because And now company we are is told different that we shouldn't be judging people. That's totally fine कि उनका और अल्लाह का मामला है. We shouldn't be judging people. But फिर कई दफा हमें कहा जाता है that आप इंसान से नफरत नहीं करो, उसके अमल से नफरत करो, right? Absolutely. But जो भी वो करता है, that's willingly he or she is doing. Okay. तो you should avoid that person कि आप उसके पास या आप उसकी कंपनी में ही रहो. What do you have to say on that? See, the point that we were trying to clarify yesterday was that we have to see there are certain things which is apparent and certain things which are hidden. Okay, in matters of actions of the limbs, it is quite obvious. So it is very easy for a person to recognize a very strong believer from a very strong disbeliever. Agreed? You can easily figure out who is a pious person and who is kind of either a fake or either a disbeliever or somebody who is pulling you away from Islam and Deen and Allah subhanahu wa ta'ala. So what you do is what has been recommended is that you stay in the company of the believers. Here we are not judging anyone. Here we are only thinking, see, sometimes in matters of Deen you have to be little mean, because each one of us will be going individually in our grave. So we have to be little mean here, which means that we have to be very selective in what kind of company and crowd and people who are around us, who influence us, who inspire us. So on that note, we are hand picking up things. Similarly, if you're going to say cooperative, you are picking up good fresh fruits. It is apparent. What you see with your eyes, you will pick the best. Similarly, in regards to company, you will select the best. And then those people will have an impact on you, and those people will have an impact on the belief that you have. So that's the whole thing. It's a very fine line actually, but then it's quite easy. You are not judging here for some other reason, maybe to pinpoint them or taunt them or trying to belittle somebody. You are just looking for good deeds and you are trying to associate with such people. So you're trying to associate with good believers and you're trying to disassociate with disbelievers. That's it. But here there is no question of anything being judgmental. Right? Okay. Yeah. So this is like, but yeah. जी बोले हमें बुरे को बुरा जानना चाहिए, right? So बुरे को बुरा जानकर अपने आप को उनसे अलग करना है. You have to अपने आप को कहते हैं ना जिससे डिस्कनेक्ट करना है उनसे. ठीक. Because the point is कि ये लोग जो होते हैं ना कहीं जाकर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा. Because there are ample of hadith in this regards. जैसे अगर मुझे चंद जो इमीडिएटली याद आ रही है कि एक इंसान जो है वो अपने दोस्तों के दीन पर होता है, राइट? दूसरी एक हदीस का मफहूम ये है कि यू विल बी रेज्ड अप अमंग दोस्त जिनके ग्रुप में आप रहते थे, जिनके लिए आपको फीलिंग्स थी, यू वर कनेक्टेड क्लोजली विद देम. सो these are the points, these are the things, these are the tips for us. What kind of people you want to be raised among? Who are the people जिनके influence के ऊपर आपको रहना है? तो it is a very important matter. And I always tell कि जो हमारे teenagers हैं, students हैं, जितने भी, even for that matter mature people, you have to be very sure what kind of company and surrounding you are into. Okay, let's begin inshallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yesterday we stopped at one hadith. Today again we are beginning with one hadith here. Abu Sa'id radiyallahu anhu narrated in a marfu hadith, a sign of lacking certainty of faith is that you seek to satisfy people at the expense of Allah's wrath.
and to praise them for the sustenance provided by Allah Azza wa Jal, and to dispraise them for what Allah did not grant you. The sustenance provided by Allah is not brought to one because of a desire of anyone, nor it is prevented because of someone's dislike. So what is certainty of faith? Yani perfect belief in Allah. That is the certainty of faith, that you have 100% faith in Allah Azza wa Jal. Satisfy people at the expense of Allah's anger, to prefer the satisfaction of people to that of Allah. We discussed this yesterday in a couple of hadith, that हम दुनिया का सोच के अल्लाह को नाराज कर दें, अनाउज़ that's the worst thing to do. So हमने जो है, हमारा goal जो है, it is seeking Allah's pleasure, and दुनिया को या दुनिया वालों को खुश करना is not our goal. Our goal is to please Allah, not people. Praise them for the sustenance provided by Allah. Again, we discussed this yesterday कि अगर हम कोई promotion को increment के लिए किसी boss की हम वो कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, but उससे बेहतर ये नहीं है कि जो सबका मालिक, सबका खालिक, सबका जो provider and sustenance वाला है, उससे हम मांगे directly the main source. That is much more easier, isn't it? To attribute the divine provision to some people whom Allah made as intermediaries, forgetting about the benefactor and bestower. यानी हम लोग जो है खुले खुले फिर ये जो है शिरक कर बैठते हैं. So that is not what we are doing. Again, I would like to pinpoint, we discussed about this के जरिया जो है, cause जो है, उसको हम use कर सकते हैं, लेकिन we don't have to have faith कि यही cause जो है वो reason है कि हमें ये मिलेगा. The reason and the final decision is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. To dispraise them for what Allah did not grant you, that is dispraising people because of withholding what one asks them from. Yani, if somebody is not able to provide you certain things, or is not able to become a cause to provide you certain thing, you don't dispraise them, because end of the day Allah is the provider, and if it is meant for you, अगर वो आपकी कदर में है, आपके नसीब में है, तो वो आपको कैसे भी करके मिलेगा, चाहे लोग चाहे या ना चाहे, चाहे आप उसके लिए दुआ मांगे या ना मांगे. What is meant for you, you will get it for sure. अभी इसका एक और classic example I'll give. Many people, many couples, yani, they are trying to conceive, get baby and things like that. बल्कि वो IVF and IUI and whatnot surgeries and millions of rupees they are spending. And there are people who are on contraceptives and they conceive. And there are even people जिनके fallopian tubes block हैं and they conceive at the mouth of the uterus. Imagine people who don't want it, they don't desire, उनको अल्लाह ताला नवाज रहा है. It is यानी Allah's wish, अल्लाह की तकसीम है, किसको औलाद है, क्या रिस्क में, किसके लिए क्या लिखा हुआ है, कौन सी एज में, कब, कैसे, कहाँ. We have no say in that actually. Similarly, under the category of risk, all the blessings जो आपको मिलती हैं वो सारी उसमें आती है, not only money or wealth. So सारा कुछ जो है वो अल्लाह के हाथ में है. आप चाहो मत चाहो, मांगो मत मांगो, what is meant for you will come, because 50,000 years ago लोहे महफूज में आपकी कदर लिख चुकी है. So what has been written is written. The pens have been lifted and the inks have been dried. So you don't dispraise people if they are not able to provide you things, because that is not meant for you. The hadith in question stresses the obligation of keeping one's heart solely attached to Allah as regards drawing the good and repelling the evil. It further highlights the obligation of having fear of Allah alone. Moreover, it proves the prohibition of praising or dispraising humans in return of what is granted or withheld. यानी कि अब हम लोगों ने ना कई बार when we were doing the chapter of shirk and stuff, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस मैटर को भी टच किया था कि actions, matters of heart, and even with kalimat, certain times we say things that is shirkiya. Masalan, for example, okay, I'll give you an example which I face on a regular basis. Like being a therapist, sometimes some people, they get rid of pain. उनको pain की relief मिल जाती है, या जिस मकसद के लिए हमने उनका हिजामा किया था उसमें alhamdulillah we are successful. So I make sure that I don't use the words that I did it. यानी ये मैं बहुत केयरफुली इस चीज के ऊपर हमेशा वर्कआउट करती हूँ कि गलती से भी मेरे मुंह से ये ना निकले कि मैं कहूँ हाँ मैंने किया था तो आप ठीक हो गए, ये दवाई खाई थी तो हम ठीक हो गए, वो सर्जरी डॉक्टर ने उसने की थी तो हम ठीक हो गए. योर कलिमात शुड बी अल्लाह ने हमें शिफा दी. जरिया कुछ भी है, of course you are being grateful and thankful to the cause also as a matter of your adab, but आप उसका क्रेडिट किसको देंगे? आप उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को देंगे, because who is Shafi? Shifa is from Allah Azza wa Jal. So never take the credit, never give the credit. And
everything you have to direct to only Allah subhanahu wa ta'ala. So that is where यानी कई बार जैसे मैंने आपसे कहा कि matters of heart, matters of actions, matters of कलिमात, okay, उसमें भी आपको केयरफुल रहना है कि आप कोई दवा खा रहे हो, आपकी नियत क्या होनी है कि अल्लाह इसमें मेरे लिए शिफा डाल दे. बिकॉज हर एक खाना, हर एक दाना, हर एक पानी की बूंद जो आपके गले से नीचे उतर रही है, हर एक वो हवा जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, it takes permission from Allah Azza wa Jal whether to give you shifa, आपको वो फायदा पहुंचाए या आपको नुकसान पहुंचाए. So that is the reason you will see that some people उनकी इम्यूनिटी सबकी अलग अलग लेवल पे चल रही है, क्योंकि अल्लाह ने सबके लिए अलग अलग लेवल पे शिफा रखी है. किसको कब क्या अफ्लिक्ट होना है वो डिपेंड करता है कि अल्लाह ने उनके लिए क्या लिखा हुआ है. तो इसीलिए हम वो चीज को, वो कॉज को क्रेडिट नहीं देते, हम अपने आप को क्रेडिट नहीं देते. हम सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र करके, सब्र करके, एवरीथिंग वी डायरेक्ट टू अल्लाह अज़्ज़ा व जल. And what do we learn from this hadith is it is obligatory to rely on Allah alone. We discussed this yesterday also. कि it is not just ये आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, वैसा वाला मामला नहीं है. ये मामला obligatory है कि आपको सिर्फ अल्लाह को fear करना है, अल्लाह से ही provision मांगना है. And it is also a proof of Allah's decree and destiny. जो अभी हमने discuss किया कि कदर के बारे में भी this is a proof. In this hadith, the Prophet ﷺ illustrates that Muslims should have strong trust in Allah Azza wa Jal, rely on Him and believe that all matters go according to His will and disposition. यानी सारी चीजें, even एक जो पत्ता गिर रहा है, सूखा पत्ता, एक एक मूवमेंट, even scholars say कि जब आप ऐसे जैसे आप बैठे हो रिलैक्स होके अपने फेस पे अपने हाथ रखा हुआ, even that's written, each and every gesture, okay, हर एक चीज minutely is recorded. Now when it is recorded to that extent, तो इसमें फिर किसी इंसान की क्या अहमियत या औकात है कि वो उसमें कोई changes ले आए. No additions, no omissions. Whatever is written, that's it. So we have to have trust only on Allah Azza wa Jal, and we continue making dua to Him. We continue seeking refuge in Him. We continue asking from Him and no one else. Muslims should also believe that Allah decrees whatever results He wills for any causes taken. Likewise, if Allah wills, He may withhold the causes from leading to results. यानी आप देखें अभी जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया इनफर्टिलिटी वाला, यानी इतनी हद तक बंदे ने टेक्नोलॉजी का यानी प्रोग्रेस करके अपने तरफ से पूरी, जिसे हम कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया. उसने वहां से हेल्दी ओवम लिया, एक्सटर्नली स्पर्म ऐड करके जाके अपने हाथ से एम्बेड इम्प्लांट किया जा रहा है, येट गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा. यानी आप ह्यूमन कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो. तो आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर वो आपके नसीब में नहीं है तो आप वो खाना पकाएं और बड़े अच्छे से अपने आप को सर्व करें और वो निवाला आप अपने मुंह तक ले जाएं. अगर वो आपके नसीब में नहीं है, आपकी कदर में नहीं है, तो आपके मुंह में नहीं जाएगा. ठीक है. सो our firm faith is that everything is written, everything Allah knows, and there is a will of Allah in everything that happens. In other words, all matters are dependent upon Allah's will. As such, He is the only one worthy of praise in prosperity and adversity. यानी सुख में दुख में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही हमदो सना करनी है. एडवर्सिटी में, दुख में, तकलीफ में सब्र करना है और खुशी में शुक्र करना है. So sabr and shukr goes hand in hand. Actually, praising Allah at the time of adversity is the highest degree of certainty of faith. यानी ये हम लोग खुशी के माहौल में हम अल्लाह का शुक्र करें, फंटास्टिक. लेकिन जब हम पर आजमाइश आती है, दैट इज द रियल टेस्ट. तब हमें पता चलता है कि हमारा यकीन क्या है. क्योंकि काफी सारे लोग आप देखे होंगे कि वो जब तक के सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, नेमतों में बिल्कुल घिरे हुए हैं, enjoying the blessings and having lots of luxuries in their life and privileges in their life, they are happy. The moment एक ना एक blessing छीन ली जाती है, then what happens? Then they start cursing, they start blaming the destiny, they start blaming people, they start blaming themselves. यानी ये जो blame game करते हैं ना लोग, ये उनकी ईमान की कमजोरी की साइन है. Because people who are staunch believers will never do that. उनका यकीन तवक्कुल अल्लाह पे रहता है. The way they accept the blessings, जो अच्छे टाइमों को जिस तरीके से वो जिस एटीट्यूड से वो एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से
जब एडवर्सिटी हिट होती है तभी भी वो सब्र के साथ, परसिवरेंस के साथ उस सिचुएशन को एंड्योर करते हैं. दैट्स अ साइन. एंड लोग जो कंप्लेन करते हैं, स्टार्ट रिएक्टिंग एंड बहुत ड्रामेटाइज करते हैं, इट इज अ साइन ऑफ अ वीक ईमान. Some people become heartily attached to the means owned by wealthy and powerful humans, so that if they gain some benefits through people, they praise them. And if people withhold those benefits, they dispraise and blame them. यानी जो नॉर्मल हमारा तर्ज अमल रहता है कि हमें किसी से, यानी नॉर्मली जनरली एटीट्यूड आप देखेंगे, दिस इज अ प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस. यानी मैं किसी को भी नहीं ब्लेम कर रही यहाँ पर या पिन पॉइंट कर, आई एम सेइंग समथिंग इन जनरल. Our attitude towards poor and weak and our attitude towards rich and affluent people of the society, हम लोगों का जो नजरिया है रिच एंड फेमस के लिए वो टोटली डिफरेंट है. हम कहीं ना कहीं दिल में हमारे ये होता ही है कि अगर हम इसके साथ अच्छे रहेंगे या अच्छा इखलाक एग्जिबिट करेंगे तो हमारा कुछ फायदा हो जाएगा. और गरीबों के साथ बहुत मिस्कीन है, उनसे कोई लेना देना नहीं. हम अपने रूड रफ बिहेवियर में, एरोगेंस में रहते हैं. Why do we do that? हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए कि हमारा हुस्न अखलाक जो है वो गरीबों के साथ इनफैक्ट ज्यादा नरमी और बेहतर होना है. बट वी एक्सपेक्ट वर्ल्डली गुडीज. हम लोगों को दुनियावी कुछ चंद चीजें हासिल करनी है वो रिच लोगों के साथ, इसलिए हमारा उनके साथ तरीकाकार और मामलात हमारा डिफरेंट रहता है, जो कि टोटली अगेंस्ट है सुन्ना के. You have to have beautiful character and more merciful and more graceful towards the poor and needy. लेकिन हम लोग उलट करते हैं. May Allah protect us and give us right hidayah in this aspect as well. तो ये भी एक, again it is reflecting weak faith where you are not certain कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से आनी है चीजें, and then you start praising and stuff like that. By the way, just off the topic I'm asking, is it recommended or is it the right thing to praise somebody on their face? You can unmute yourself and respond please. इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. किसी की तारीफ करना उसके मुंह पर, उसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? Yes guys, who wants to respond, please unmute. Yeah, Husna. I believe you should. Even if you have to say anything bad, you should do it in front of the person, not behind. Bad. मैं actually praise के बारे में बात कर रही हूँ because we have this part in I'm talking about, yeah, praise also should be. We should praise or not praise, or what is the ruling? यानी जो भी आपकी idea हो in regards to praising somebody on their face. Yeah, I think you should. You should. Okay. I believe, yes. All right. Because it kind of motivates the person. It motivates. And unless he doesn't take it in the wrong sense, it doesn't get to the person's head. And all right. Actually there are a couple of points what. in regards to a hadith in regards to praising somebody. तो इसलिए मैंने ये point raise किया अभी. Anybody else would like to add on? Okay. Sister Aisha is sending me a message. Why not? Yes, praise on the face, but depending on the person. Depending on the person, Mani? Aisha, you can unmute and talk. हाँ जी, मारिया एंड फरहीन, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Depending on the person, yani that person doesn't, as this other sister said, that depending on the person, that doesn't take it to the head, and like there are few people who would not take it. I mean, who would actually praise Allah for being praised, but there are some people who take it like or take it to their head, which is not a right thing. So if you know the person well, I think you can go ahead and praise the person on the face. Okay. Yes, Arshia, bole. I think it depends on the situation. Na? If you feel that person is getting क्या बोलते हैं, a little low in so just to give them some confidence, you can do. I think depend on the situation.
Depends on the situation. Farhin, would you like to add something? मुझे भी यही लगता है कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन बट वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि एग्जैजरेशन उसमें ना हो आप एग्जैजरेट नहीं करें उसे Okay, very good. Exaggeration. Okay, so the points that you guys have mentioned is, okay, number one is it depends. यानी it is a good thing because वो motivate करेगा. दूसरा ये कि वो person जो है should not take in the head. So if you know, then you can go ahead and praise, it seems. And as Maria said, the exaggeration shouldn't be done. Whereas there is a hadith, okay, because हम लोग, like I always say, if we say we are the student of knowledge, or if we say we are the people who believe in tawqifiyya is people who believe in following things as per the sources. And what are our sources? Our sources is Quran and hadith, okay, authentic hadith. Now according to the hadith, actually uska gist ya mafhum ye hai कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, एक सहाबा ने दूसरे सहाबे की तारीफ की, तो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that you have destroyed that man. Now it is not recommended, actually, and it is not liked. I would say not recommended, I would say it is disliked to praise somebody on their face. Why is that so? We cannot know. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल इन अवर डे टू डे लाइफ. अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा चैरिटी या सदका या नेकियां कर रहा है, उसको आपने देखा और उसको आपने जाकर उसकी नेकियों के बारे में अपने मुंह से अपनी तारीफ कर दी, कहीं ना कहीं जाकर अगर एक आयोटा राई बराबर भी अगर उसके दिल में आ गया आई हैव डन समथिंग गुड, तो उसकी नेकियां जाया हो गई. That is what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam meant with that you destroyed the person. क्योंकि कहीं पे भी we are human beings, right? And whenever we do certain things, हम ना लोगों की praises या we want somebody to watch us and observe us. और उस चक्कर में ना हमारे अंदर कहीं ना कहीं जाकर वो रियाकारी आ जाती है, हमारे अमाल जो है वो जाया हो जाते हैं. इसीलिए certain things like जैसे हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं, नेकी कर दरिया में डाल, सदका दिया तो वो आप देने के बाद वो मिस्किन को देखो ही मत कि वो आपको सलाम करेगी. जस्ट वॉक ऑफ, यू डोंट हैव टू एक्नॉलेज इट. ओके, उनसे एक्नॉलेजमेंट भी नहीं लेनी है. देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर यू हैव टू, यानी जो स्कॉलर्स हैं या जो हमारे हदीथों में एग्जांपल्स हैं, दैट इज व्हाट वी फॉलो. इन फैक्ट आई वुड लाइक टू कोट अ दुआ हियर व्हिच उमर इब्न खत्ताब यूज्ड टू से व्हेनेवर एनीबॉडी वुड प्रेज हिम. किसी को आती है वो दुआ? I'll try to post it in the group, inshallah. Allahumma la tuakhizni bima yaquluna waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazannun. Yani Allah, do not take me into account for what they say and forgive me for what they have no knowledge and make me better than they imagine. Yani देखो आप, वो लोग एक नुक्ता भी नहीं छोड़ते थे. No wonder they were so perfect in their deen. No wonder they were promised Jannah. Because इतनी सी बात, they were deserving it. एंड पीपल वुड से कि चलो हमको, जैसे आप लोगों ने पॉइंट्स बताया कि वो पॉइंट से हमको इंस्पिरेशन मिलेगी, बट अ बिलीवर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल्स इंस्पिरेशन, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल्स एक्नॉलेजमेंट. क्योंकि मैं आपको बार बार अकीदे में यही चीज सिखाना चाह रही हूँ या समझाना चाह रही हूँ कि आपका जो रिटर्न और एक्सचेंज है या आपकी जो डीलिंग है अगेंस्ट योर डीड्स, इट इज विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड अल्लाह इज टेकिंग अकाउंट ऑफ एवरीथिंग. तो आपको ये लिखवाने के खाते में किसी की जरूरत नहीं है और लोगों को इस चीज को एक्नॉलेज करने की भी जरूरत नहीं है. द बेस्ट दैट यू कैन डू इज मेक दुआ, डोंट डिस्ट्रॉय दैट पर्सन. अब आप अगेन आई वुड से डोंट टेक मी इन द रॉन्ग सेंस, इसको अपने बच्चों के उस पर इस्तेमाल नहीं करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ मैच्योर सेंस. यानी बच्चे अगर कुछ अच्छे काम करते हैं, यू हैव टू डेफिनेटली एक्नॉलेज, यू हैव टू प्रेज देम, नो एग्जैजरेशन ऑफ कोर्स एज मारिया स्टेटेड, बट मेक श्योर कि अगर हम ये मैच्योर लेवल पे लेकर चल रहे हैं, इफ यू फाइंड समबडी वेरी गुड, वेरी पायस, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, समथिंग दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, बट उस कीप इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट एंड मेक दुआ. सबसे बेस्ट बारकल्लाह फीक, आप दुआ दे सामने, पीछे से भी दुआ करें और उसके बाद उनके दिल में कोई भी ऐसी बात ना डालें जिससे कि वो सोचें कम ऑन हाउ मेनी लाइक्स आई एम गेटिंग, हाउ मेनी thumbs up I'm getting. वो वाली एटीट्यूड ना आ जाए, क्योंकि फिर क्या हो रहा है, आपने उनके साथ एक्चुअली दुश्मनी कर दी. So in regards to praises, this is the ruling and that is what I wanted to clarify. Okay, we'll continue. So they blame people जिनसे उनको फायदा नहीं पहुंचा, dispraise them and they want to
praise people जिनसे उनको फायदा हुआ, लेकिन that is not the right approach. We only have to have faith in Allah Azza wa Jal. Then the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ends up his words by stressing what he has said at the beginning, that Allah is the only one who gives and withholds everything according to his own will and wisdom, regardless of the servant's desires or detestations. यानी हमको मिलना नहीं मिलना चीज हमारी desire, हमारी choice, हमारी मर्जी से नहीं है. You will get what is written for you. You will not get what is as per your choice. हो सकता है वो choice coincidentally सही हो, सेम हो, लेकिन of course यहाँ पर हमारा हथियार क्या है? We have दुआ जिससे हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. दुआ has amazing impact. तो आपको जो भी चाहिए अल्लाह से मांगे, अल्लाह से तवक्को करें and seek from him only him. Another hadith, Aisha radhiyallahu anha narrated, I heard the messenger of Allah Azza wa Jal saying, if anyone seeks Allah's satisfaction at the expense of people's anger, Allah will be pleased with him and will cause people to be pleased with him. However, if anyone seeks people's satisfaction at the expense of Allah's anger, Allah will be angry with him and will cause people to be angry with him. तो यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अगर कोई अल्लाह की रजामंदी चाहता है लेकिन उसके बदले में लोग उससे गुस्सा होते हैं या नाराज होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे अल्लाह राजी होते हैं और अल्लाह ताला लोगों को भी उनसे राजी करवा देते हैं. There is another hadith in the same regard जहां पर if Allah loves somebody, what he does, he tells angels कि ये फला फला बंदे से मुझे मोहब्बत है, तो you also love him, and then he makes the people of the world also उनके दिल में भी उस बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं. So see how he multiplies it. Whereas opposite side में क्या है कि अगर कोई लोगों की satisfaction के लिए पीछे भागता है at the cost of Allah's anger, यानी वो अल्लाह की परवाह ना करते हुए लोगों को प्लीज करने चाहते हैं, तो what happens, Allah will be angry with him and even people will be angry with him. यानी वो जिन लोगों को प्लीज करने जा रहा है वो भी राजी नहीं होंगे. और ये बात मेरे ख्याल से हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कई बार हम लोग किसी को प्लीज करने के लिए सब कुछ कर देते हैं. समटाइम्स पेरेंट्स होते हैं हमारे जिनको हम प्लीज करने के लिए सब कर लेते हैं, पूरी कोशिश लगा देते हैं. हम अपने कोई सर्टन टीचर को प्लीज करना चाहते हैं, हम मैरिड फीमेल्स अपने हस्बैंड्स को प्लीज करना चाहते हैं, समटाइम्स हम अपने बच्चों को प्लीज करना चाहते हैं. लेकिन आदमी इतना नाशुक्रा होता है कि वो राजी ही नहीं होता. अगर आपने अपनी गर्दन भी काट के रख दी तो कहेंगे 1 इंच नीचे होता तो ज्यादा बेटर था. दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड. बट इसके बदले आप देखो, जब आप अल्लाह को प्लीज करने के लिए जाते हैं, इमीडिएटली यू कैन फील हिज लव. आपको बिल्कुल महसूस होगा वो सकीनत, आपको ट्रैंक्विलिटी, वो आपको मुतमईन वाली फीलिंग आपको मिलेगी. यू विल बी कंटेंट, यू विल बी एट पीस, एंड दैट फीलिंग यू कैन नेवर गेट विद एनी पीपल अराउंड यू. वो लोग ना शुक्रे के ना शुक्रे ही रहेंगे. तो अगेन जैसे मैंने कहा कि ईच इंडिविजुअल का जो अकाउंटिंग है या ईच इंडिविजुअल की जो रिलेशनशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सिर्फ अल्लाह के साथ. अल्लाह को प्लीज करने के लिए हम दुनिया वालों के साथ अच्छे हैं, अल्लाह को प्लीज करने के लिए हम दुनिया के वालों के साथ बुरे हैं. यानी हम जो भी हमारे एक्शंस, जो भी हमारे डीड्स, जो भी हमारी मामलात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के पास घूम रही है. अल्लाह को प्लीज करना है, अल्लाह को नाराज नहीं करना है. दैट्स इट. और इसका बदला भी हमको अल्लाह से ही लेना है, हमको दुनिया वालों से नहीं लेना. बिकॉज उनकी पहले नंबर पर दे कैन नॉट प्रोवाइड यू, उनकी औकात नहीं है. दे आर नॉट द प्रोवाइडर, दे आर नॉट द खालिक, दे आर नॉट द मालिक, दे आर नॉट द मुदब्बिर. दूसरे नंबर पर हमें इंसानों के साथ एक्सचेंज कुछ नहीं करना है. यू डू समथिंग गुड फॉर देम, खलास, बदला आपको अल्लाह से लेना. अल्लाह से बेशक मांगे, अल्लाह से आप जो नेकियां करें, आप अल्लाह के सामने खड़े होके बड़े अच्छे से अल्लाह से नेगोशिएट करें. आस्क हिम, ही विल गिव यू. और अल्लाह ताला की यानी ऐसे इंसानों की तरह बखील वाला मामला नहीं है, बहुत वसी है, ओके, बहुत गनी है. सो आप उस तरीके से मांगे, खुल के जो दिल करता है मांगे, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट्स. बट आपको उस टाइप का रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा. So what do we learn in this hadith? The Prophet ﷺ shows the way by which one may attain the satisfaction of Allah Azza wa Jal and people, as well as the way by which one may incur the dissatisfaction of Allah Azza wa Jal and people. So Allah always decrees what is good for his creation, and people definitely gain this good sooner or later.
यानी हम लोग को एक और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, लाइक बार बार व्हेन आई से एवरीथिंग इज रिटन अल्लाह's विल, तो हम लोगों का एटीट्यूड बिलीवर्स का ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अल्लाह ने हमारे लिए नाउज़ुबिल्लाह बुरा सोचा है। अल्लाह ताला ने हर शर के पीछे हमारे लिए खैर रखी है। बी इट दिस लॉकडाउन, दिस कोरोना वायरस, द वॉर्स दैट आर हैपनिंग, द राइट्स दैट्स हैपनिंग, हर चीज के पीछे खैर है, ठीक है। और वो हमको नहीं पता, वी हैव वेरी स्मॉल पी हेड ब्रेन है हम लोग, हमारी जो सोच है बहुत माइक्रो वाली लेवल पे है, बट अल्लाह की जो प्लानिंग और अल्लाह की जो नॉलेज है वो बहुत बड़ी है। हमारा काम है सिर्फ अल्लाह पे ट्रस्ट करना एंड दैट्स इट। लेकिन नेगेटिविटी या नेगेटिव फीलिंग्स का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। सो अल्लाह इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट खैर। इसका एग्जाम्पल ही आप देख लें, नंबर 1 वी आर बॉर्न मुस्लिम्स, एंड उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से खुशनसीब वो हैं जो इस्लाम पे रिवर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर हमको दीन की, इल्म की नॉलेज, ठीक है, हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कितनी आसानी की है। यानी हर आप यू जस्ट लुक अराउंड एंड देन यू विल हैव ample of reasons to be grateful to Allah Azza wa Jal, and then feel his love and care and nurturing. यानी आप सोचो, कई बार whenever I see some काफिर को मैं देखती हूँ तो आई फील दे आर सो लॉस्ट, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग सुबह में जब उठते हैं, वी से अपनी मॉर्निंग की दुआ से लेकर सुबह से लेकर रात के सोने तक, वी हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट of what to do, what not to do, where to go, where not to go, what to wear, what not to wear, हर चीज का हमारे पास एक डायरेक्शन है। Imagine somebody who doesn't have a direction, यानी कोई ऐसी पतंग जिसका कोई डोरी नहीं, यहाँ हवाई वहां उड़ गई, वहां हवाई वहां उड़ गई, कहाँ लैंड करी पता नहीं। हम लोगों की वी आर एंकर्ड, हमारे पास डायरेक्शन है, हमारे पास पूरे इंस्ट्रक्शन है जेन्यून। हमारा दीन कोई फैंटेसी के ऊपर बना हुआ, मिथ के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर बना हुआ नहीं है। एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। अब इससे ज्यादा अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमारे लिए कुरान भेजा गया, हमारे लिए नबी भेजे गए, हमारे लिए वो लोग भेजे गए जो हमको सही गलत की पहचान बताते हैं। हमारे बिना मांगे हमें माँ बाप दिए, हमें इतना खूबसूरत हमारी खलकत की, हमें समझने बूझने की ताकत दी, हमारे अंदर रूह फूकी गई। यानी यू हैव crore reasons to be thankful to Allah Azza wa Jal. But what do we do instead? हम जो हैं, जो हमको नहीं मिली, जो हकीर चीजें हमको नहीं मिली, उसको लेकर हम अपने दिल में नेगेटिव रिमोर्स फीलिंग्स रखते हैं। That is absolutely wrong approach. You have ample of reasons to be thankful. Look around and you will feel Allah's love. So be thankful. Continuously आप जितना thank करेंगे आपकी नेमतें बढ़ेगी. That is even a shortcut for increasing your rizq. Astaghfar and being thankful. So Allah has ordained for their instant or late benefit, for they do not know the consequences of their deeds and are influenced only by worldly factors. Hereby, the stance of the true believers becomes distinct from that of the ones whose belief is shaky. A true believer gives priority to Allah's satisfaction over that of people, and thus persists in acting upon Allah's law, not fearing the blame of a critic. As a result of such a believer's keenness on pleasing Allah, Allah constantly grants him victory over his opponent, as he says in Surah Talaq, verse number 2, and whoever fears Allah, he will make for him a way out. यानी आपको लोगों की क्रिटिसिज्म या उन लोगों की ताना या उन लोगों का साथ आपसे छूट जाएगा या आप उनसे छूट जाओगे की फिक्र नहीं होनी चाहिए, भले आप अकेले हों। थिंक अबाउट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपना घर छोड़ा, अपने वालिद के साथ वो अलग हो गए, पूरा एवरीथिंग दे लेफ्ट अलोन, सिंगल। इमेजिन हाउ दे वर। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल आप ले रहे हैं, हाउ ही लेफ्ट एवरीथिंग, दुनियावी चीज को, अल्लाह की बात कंफर्म, ही वाज एंजॉयिंग अ वेरी गुड पोजीशन। पर जैसे जैसे अल्लाह का मैसेज अकीदा तौहीद के बारे में बात करने लगे तो लोगों ने उनको दुश्मन करार दिया, उनको नाम देने लगे, उनको फिजिकली भी अब्यूज किया। यानी इमेजिन इतनी टॉर्चर, इतना सब कुछ, बट सब चीज झेलने को तैयार है। जो छूट जाए नो प्रॉब्लम, बट अल्लाह मिल जाना चाहिए। However, a Muslim of shaky belief prefers seeking the satisfaction of people to seeking that of Allah Azza wa Jal, and thus seeks fulfilling people's desire even if they are contrary to Allah's directive. In fact, such a person fears people more than he fears Allah. ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि कई बार हम दुनियावी लोगों को खुश करने के लिए या उनकी नजरों में अच्छा होने के लिए अल्लाह को नाराज कर जाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। You stick to your principles and trust me, आपकी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप जब कभी भी
दुनिया को तरजीह ना देकर अल्लाह को तरजीह देंगे तो अल्लाह ताला विल रेज यू अप, अल्लाह ताला आपको उन पे भारी कर देंगे। और वो अल्लाह का काम है, वो आप सोचो मत कैसे, कब, कहाँ, कौन कैसे करेगा, इट्स नथिंग। अल्लाह के लिए सिर्फ कुन है, ही कैन डू एनीथिंग। तो आप अपना फेथ, अपना ईमान, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बना के रखें, शेकी बिलीवर नहीं, जो आज हालात ठीक हैं तो इधर है और नहीं तो पलट गए। यही आप देख लें, यानी मुनाफिकों का क्या काम था, यही था ना कि जब अच्छे दिन है तो स्ट्रॉन्ग है तो उनकी तरफ, और जैसे पलटे तो वो भी दिन से पलट जाते थे। Since this is his objective which motivates his actions, he will be given the contrary of what he willed. Therefore, those who praise him will turn to dispraise him, and those people will avail him nothing before Allah. Hence, that person harms himself instead of benefiting him. In fact, मुझे एक और एक हदीस याद आ रही है कि अगर किसी के लिए इंसानी लिहाज से मैं कह रही हूँ कि किसी इंसान को आप इम्पोर्टेंस देकर अल्लाह ताला के डायरेक्टिव्स को अगर नीचे कर देते हैं, तो जिसको आपने प्रायोरिटी दी है ना, उसी से आपकी रुसवाई होगी, उसी से आपको गम पे गम मिलेगा, उसी से आपको जिल्लत मिलेगी। एंड इमेजिन, दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग एंड यू विल नॉट बिलीव कि ये चीजें हमने लाइव अपनी लाइफ में देखा है। आई हैव सीन दिस। जिस किसी भी चीज को, जिस किसी भी रिश्ते को आपने अल्लाह के अनौजुबिल्ला ऊपर रखा है, उसी रिश्ते से आपको रुसवाई मिलेगी, आपको बहुत जिल्लत मिलेगी, आपको कभी वो खुशी हासिल नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक हकीर चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी नेवर डू दैट। हम लोगों को बार बार अपना जायजा लेना है, अपने आप को रेक्टिफाई करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, बिकॉज लर्निंग विल नेवर एंड। हम लोगों को ये अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है कि हम हमेशा अपने आप को फिल्टर करते रहें, अपने आप को हम प्यूरिफाई करते रहें। The hadith indicates the obligation of fearing Allah and making his satisfaction prior to that of the creatures. यानी हमारे खालिक और मालिक को हमें प्रायोरिटी देनी है, मखलूक को नहीं। ओके, दैट इज सिंपल, अल्लाह ताला को, दैट्स इट। It is obligatory to fear Allah and make his satisfaction prior to that of creatures. The hadith demonstrates the punishment inflicted on whoever prefers people's satisfaction to Allah's satisfaction. कि ये मत सोचें आप कि ये ऑब्लिगेटरी मैटर है ना, तो आप अगर नहीं करेंगे तो आप पनिशमेंट से बरी हो जाएंगे। नहीं, आप सजा के बायस बनेंगे फॉर श्योर, अनाज़ुबिल्लाह। Relying on Allah and trusting him are obligatory. तवक्कुल अल्लाह पे हमारा obligatory है। This hadith demonstrates the pleasant results of giving preference to Allah's satisfaction and the bad consequences of giving preference to people's satisfaction. People satisfaction हमारी लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। हमारा satisfaction का जो एरिया है वो सिर्फ अल्लाह के इर्द गिर्द घूमना है। The servants' hearts are absolutely controlled by Allah Azza wa Jal. Heart जो है, हमेशा हम इसके बारे में बात करते हैं कि हार्ट जो है वो अल्लाह से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड इसीलिए देयर आर सर्टेन दुआस फॉर दैट, या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस हदीथ हमारे जो दिल है वो अल्लाह के फिंगर्स के बीच में है। यू नेवर नो कब किधर पलट जाए। सो टाइम दर टाइम हमको इसी के लिए दुआ करती जानी है। और ये दुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रीक्वेंटली बोला करते थे, या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल जो है वो दीन पे लगा कर रख और उसको साबित कदम रख, टू गिव स्टेडफास्टनेस, ताकि हम अपने दीन से कनेक्टेड रहें। ऑलराइट, सो देयर वी कंप्लीट फियर ऑफ अल्लाह। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, कोई डिस्कशंस है तो वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल टेक द इंट्रो ऑफ आवर नेक्स्ट बायोग्राफी ऑफ अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु। कोई क्वेश्चन है? Yes, Razia ji, I can see your mic. Anybody's got any question there? So, shall we continue? All right.
Surah Tawbah, verse number 40. The second of the two, when they Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiallahu anhu were in the cave, he sallallahu alaihi wasallam said to his companion, "Be not sad, surely Allah is with us." That is the opening of the book that I'm going to refer to. This is Golden Stories of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu by Abdul Malik Mujahid. This is the same writer जो हमने खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का बायोग्राफी पढ़ी थी, उसी की है. उनकी एक्चुअली सीरीज ऑफ बुक्स है इसके ऊपर. देयर इज खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, देयर इज अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, आयशा रदियल्लाहु अन्हा, यानी पूरी उन्होंने सीरीज ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरीज बनाई हुई है, कलेक्शन ऑफ गोल्डन स्टोरीज. तो उसको हम लेकर चलेंगे एंड वी विल सी हाउ दिस वंडरफुल कैरेक्टर्स, इन्होंने क्या किया जिससे इनका जो है दर्जा इतना बुलंद किया हुआ. तो ये जो बुक है, it will give us an insightful glimpses into the extraordinary life of the first caliph of Muslims, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, and his massive contribution to all of humanity. First, as a principled and disciplined young person in Makkah, a successful businessman embracing Islam under the tutelage of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and finally laying the groundwork for Islam's spread across the globe. यानी उनके आप रोल्स देखें कितने. फर्स्टली ही इज लाइक अ वेरी डिसिप्लिन यंग पर्सन ऑफ मक्का. उसके बाद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन. उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उन्होंने कैसा ग्राउंड वर्क किया जिससे कि ये इस्लाम का मैसेज वर्ल्ड ओवर फैल गया. So many roles, so many shades, so many colors. And of course, he was the best friend of our messenger sallallahu alaihi wasallam. So you can imagine again, आप देखें एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि कंपनी कैसी हो, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जैसी हो. In a world currently needing moral and ethical leadership based on the divine revelations of Allah, the life of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu offers a blueprint to those Muslims and non-Muslims searching for the truth. तो यार देखिए रीजन अगेन, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी और रीड दिस. हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जो सच्चाई की तलाश में है, हकीकत जानना चाहते हैं, ओके, उनके लिए ये ब्लूप्रिंट है. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द thing which is in front of you, living example as a role model. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu understood selflessness. He was savagely beaten for supporting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in those early days when only a few Makkans had embraced Islam. He was wealthy and spent much of his money in the way of Allah, including helping the poor and freeing slaves like Bilal radiallahu anhu. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि दीन के रास्ते पे चलने पर, अकीदा तौहीद को फैलाने पर इन लोगों को फिजिकली भी टॉर्चर किया गया था, मारा गया था, लेकिन it did not stop them from walking that path. In fact, they were becoming more stronger. उन्होंने अपनी जान माल सब दीन के लिए लगा दी, सब वक्फ कर दिया. He disposed of everything. और मिस्कीनों को, स्लेव्स को छुड़ाने में भी उन्होंने अपनी पूरी माल लगाए थे. We have an example of how he rescued Bilal radiallahu anhu. One of the most remarkable aspects, I think there is a mic open. किसी का mic खुला हुआ है. Why am I hearing some noises? All right. One of the most remarkable aspects of Abu Bakr's life was his complete devotion and belief in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Particularly in those early days when so many others were so skeptical that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was indeed the messenger of Allah. यानी आप दोस्ती का अगर आप देखें, if you remember the incident of Isra al-Miraj, when nobody was believing him, he came to him first and he told him what happened in Isra al-Miraj का session to the Isra al-Miraj, and he believed instantly. आप देखें ये जो दोस्ती का भी जो फॉर्मूला है ना, या दोस्त कैसा होना चाहिए, उसका भी हम लोगों को टिप्स इससे मिलते हैं कि दोस्त सिर्फ वो नहीं है जो खुशहाली में और अच्छे दिनों में आपके साथ है. जब गमी आती है, तकलीफ वाले दिन आते हैं, तब कौन टिकता है? वो आपका असली दोस्त है. जो आपके गम में आपका साथ देता है, वो आपका असली दोस्त है. जो आपके पीठ पीछे आपकी सपोर्ट करता है, वो आपका दोस्त है. तो आप देखिए द वे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैज सपोर्टेड हिम एज अ फ्रेंड आल्सो, यानी perfect example of a good friend, of a best friend.
तो अगर हमें कुछ सीखना है तो ऐसे कैरेक्टर से कुछ सीखना है. And when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away, it was Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu who insisted that the Prophet's instruction in matters of warfare, peace and personal conduct were followed to the letter. यानी अब आप देखें इतना इमोशनल माहौल जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, इतनी गहमा गहमी, लोग आधे, कुछ लोग डाउट में है, कुछ लोग गम में है, कुछ लोग अटैक करने के मूड में है, यानी इतनी वैरायटी ऑफ इमोशंस थे. उसमें कितनी हिकमत और कितनी समझदारी से ही वाज होल्डिंग द रेन्स. एंड इफ यू ऑल रिमेंबर उनके जो वर्डिंग्स थे कि दोज हु फॉलोड ओनली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एज अ पर्सन, तो वो लोग जो है उनके लिए नबी जो है वो मर गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, बट वफात पा गए. बट जो लोगों ने उनकी टीचिंग्स को उनकी टीचिंग्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अब तक के जारी है. इट विल गो ऑन एंड ऑन. सो इट इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू एनी वन पर्सन. यू हैव टू फॉलो द टीचिंग्स. वो रहेगी टिल दी आखिरा. उसका इस्लाम का परचम लास्ट दिन तक के कहते हैं ना कि चलने वाला. इट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन. दीन is going to prevail till the last day. And that's what he meant when he said कि जिसने अल्लाह को फॉलो किया वो कंटिन्यू करेगा, जिसने एक पर्सन को फॉलो किया वो डिसकंटिन्यू करेगा. क्योंकि दीन इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर पर्सन, इट इज बियॉन्ड दैट. उससे भी ऊपर और उससे भी ऊंचा और उससे भी गहरा. For example, this included ensuring that Osama radiallahu anhu, then only 18 or 20 years of age, according to some accounts, led part of the Muslim army against the apostates, despite objections from older and more experienced companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This was because Osama had been the choice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because वो उनके बहुत close थे, he knew the intricacies, he knew his knowledge was very strong and firm. तो example दिया हुआ है कि कैसे वो lead करते थे. Osama, who was only 18 and 20 years, तो काफी सारे लोग जो थे इसके अगेंस्ट थे कि वो लीड करे मुस्लिम आर्मी को, but he supported that. Why did he support that? Because Osama radiallahu anhu was the choice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he knew that. तो उन्होंने उसको implement किया. A great thinker and strategist, he was able ensure that Islam's spread was accompanied by winning over the hearts and minds of conquered peoples and protecting vital economic sectors in those regions. यानी वो इतने माशाल्लाह स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, इतने थॉटफुल थे कि उनको पता था कि लोगों के दिलों को जीतना है, तलवार के जोर पे नहीं, कॉन्कर करना है. एंड देन इकोनॉमिक सेक्टर को भी मद्देनजर रख के चलना है. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rejected all forms of flashy and conspicuous consumption. He shocked many of his contemporaries by wearing simple clothes of rough material, and when he passed away, he insisted that the stipend he had received from the Muslim treasury for his day-to-day expenses be offset by the sale of his garden. He was truly a man of all ages, encompassing all aspects of a complete individual as an intellectual companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and as a Khalifa. यानी किसी भी चीज में exaggeration नहीं था. Even though he had wealth, ठीक है, he could afford it, but उन्होंने कभी भी flashy lifestyle को prefer नहीं किया. एक सादी जिंदगी, simple clothes, rough material पहनते थे. And then एक छोटी सी स्टाइपेंड, छोटी सी सैलरी जो है वो रिसीव करते थे मुस्लिम ट्रेजरी से फॉर हिज डे टू डे एक्सपेंसेस. इनफैक्ट वन ऑफ द केसेस, इनफैक्ट वी विल रीड ऑल दैट इन डिटेल, बट नाउ दैट आई एम रिमेंबरिंग, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट, हाउ सिंपल एंड हाउ जस्ट एंड फेयर ही वाज. ही आस्क्ड हिज वाइफ वंस कि हम लोगों की यानी उनकी जो अर्निंग्स थी उसमें कुछ सेविंग्स होती है. वाइफ बेचारी, हर औरत जो है हम लोग भी करते हैं, वी कीप सर्टेन सेविंग्स, हम इधर उधर से स्क्वीज करके जमा कर लेते हैं. She also said that yes, थोड़ा सा savings है. So he went back to the treasurer, to the accountant, and he said कि मेरी सैलरी ज्यादा है क्योंकि मेरे खर्चे से ऊपर आ रहा है, यानी बच रहा है मेरे पास, सेविंग्स हो रही है, तो you reduce my salary. Can you imagine somebody like that? I mean, it is impossible for us to do something like that. हमारी जरूरतें ही नहीं पूरी होती. Forget we are saving how much and we go back to our company and say we are being overpaid. यानी imagine कि किस लेवल का इन
शख्सियतों का ईमान था, how pure, how raised, how revered these characters were. तो सुबहान अल्लाह, there will be lot of such stories, such inspiring moments जब हम ये बुक को go through इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे. So we will start from tomorrow. I'm not going to continue again on this. कल हम directly शुरू करेंगे. We will be starting the ancestry. उनकी lineage को हम लोग अच्छे से will go through it. उनकी physical structure कैसा था, उनकी family के बारे में हम जानेंगे, उनकी अज़वाज क्या कहते हैं, उनके अज़वाज मुतहरात, उनकी 4 वाइफ्स के बारे में जानेंगे. इनफैक्ट कितनों को पता था कि उनकी 4 वाइफ्स हैं, मुझे नहीं पता था एक्चुअली. उनके बच्चों के बारे में जानेंगे. एंड स्लोली वी विल डिग इन डीपर एंड डीपर इंशाल्लाह. अगेन हमारा इंटेंशन ये है कि हम हमारे दीन को बेहतर समझे और हम अपने रोल मॉडल को, जो सही रोल मॉडल होना चाहिए, उस लेवल तक हम पहुंचे कि हम उनको फॉलो करें, उनके फुटस्टेप्स को शैडो कर सकें. दैट इज द होल आइडिया, to please Allah, to gain knowledge and to implement this in our lives and to spread it across among our family, friends, relatives, loved ones, and continue the message of dawah. And may Allah give barakah, may Allah accept this. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, and may Allah increase us in our knowledge and amal. All right, any questions, any discussions? koi kisi point pe bhi subject ya non subject related bhi chalega. We've reached 3:01. Nothing? Are you guys there? Yes, सब सुन रहे हैं बहुत आराम से. Hello, great, inshallah. Here we will continue then tomorrow. Till then, take care of yourself and inshallah hoti hai mulaqat. Assalamu alaikum. इंशाल्लाह. बस नसीम जी जी मुझे अच्छा लगा कि जैसे आपने इस सब चीजों को कनेक्ट किया एक दूसरे से, जैसे टिप्स ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप. पहले लेक्चर को इस लेक्चर से एकदम रिलेट कर दिया आपने, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे. हाँ नहीं, द होल आइडिया, तुम यकीन करो मारिया, ये जब से यानी वी हैव स्टार्टेड दिस सिलसिला ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजों को डॉट्स को मैं कनेक्ट करते जा रही हूँ. आई डोंट नो सम हाउ, बट माशाल्लाह रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह खुलते जा रहा है. बिकॉज आई मीन यू नो आई डू इस्तिखारा फॉर एवरी स्मॉल थिंग, तो डेफिनेटली गाइडलाइंस मिलती जा रही है. बिकॉज जब तक हम ये डॉट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, वी विल नॉट रीच अवर गोल. तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू गो टू सी, इट इज ऑल कनेक्टेड, इट इज ऑल कनेक्टेड माशाल्लाह. सो इसी के यानी ये एक बायोग्राफी पढ़ ली हमने, तो हदीस दोस्ती के इंसान जो है, सॉरी जी नहीं वही मैं कह रही कि कनेक्ट होना इसका तो लाजमी है. वही मैं बोली थी कि अभी आपने बोला कि इंसान अपनी दोस्तों की वजह से पहचाना जाता है. तो इसमें जब आप हजरत अबू बकर सिद्दीक का शुरू किया, तो आपने बोला कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्ती के लिए, और उसमें उन्होंने जब आपने बताया कि ये हमारे लिए एक टिप्स हैं अच्छी दोस्ती के भी, तो मैं वही देख रही थी कि दोनों चीजें कनेक्ट हो गई, हिकमत भी आ गई उसमें, और उन्होंने कैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को लिया और फिर दोस्तों का भी उसमें आ गया, तो दोनों चीजें कनेक्ट हो गई एक दूसरे के साथ. एब्सोल्युटली यानी वो सारे पॉइंट्स जो है ना, जो हम लोग ने कहा कि स्ट्रॉन्ग ईमान, हाउ टू प्लीज अल्लाह, हाउ टू फॉरगेट अबाउट द पीपल, अपना सारा जान माल अल्लाह के हवाले, सारा कुछ, और अल्लाह की कदर से राजी, यानी वो सारे नुक्ते जो हमने डिस्कस किए, वो अब हम देखेंगे कि ये कैरेक्टर्स ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, और इनसे फिर हमें इन्फ्लुएंस लेना है, हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, और ये होंगे हमारे रोल मॉडल, हमारे बच्चों के. वो स्टूपिड फैंटेसी वाले सुपर कैरेक्टर्स नहीं, जिनका कोई बेस नहीं है, जिनकी कोई रियलिटी नहीं है. तो दिस इज व्हाट द होल आइडिया इज, कि इमीडिएटली अपनी लाइफ में इसको एब्जॉर्ब करना है और आगे फैलाते जाना है. यानी यू गाइज आर लाइक समथिंग लाइक, जिसे हम कहते हैं ना स्टार्स एंड सन्स. सन से वो लाइट ले रहे हैं और आगे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करते जाना है, इसको बढ़ाते जाना है इंशाल्लाह. बस फिर अल्लाह ताला बरका डेफिनेटली देंगे फॉर श्योर. बस नियतें अपनी खालिस रखो, और जैसे हमने छोटी छोटी चीजों को भी हमने अगर रेक्टिफाई करना शुरू किया, जैसे आज हमने प्रेज के बारे में, दोस्ती के बारे में डिस्कस किया, उस नुक्ते को आप सोच के रखें. अगर आप यू आर राइटिंग इट डाउन समवेयर, इट इज फैंटास्टिक. मेंटेन अ स्मॉल नोटबुक जहां पर आप एक दो पॉइंट भी अगर हम हर एक लेक्चर में से लेते रहें, तो वी विल हैव अ वेरी गुड कलेक्शन इन द एंड ऑफ द डे. तो वैसे भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, करते जाएं इंशाल्लाह. ये कहते हैं ना, ये रेयर मोती वो है, हम एवरी डे वी आर डाइविंग इनटू द सी एंड ब्रिंगिंग सम गुड पर्ल आउट ऑफ इट. ये उस तरीके का मामला है. तो इंशाल्लाह वी विल रीच समवेयर इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह टुगेदर.
ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है 2 बजे। ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम एंड इंशाल्लाह टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।